آغاز اہم خبر سے مارکہ حق میں پاکستان کے فتح کو دنیا نے تسلیم کیا۔ پاکستان دہشت گردی کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ دنیا دہشت گردی کے خلاف ہماری کامیاب کارروائی کی معترف ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا انسداد دہشت گردی اور ریاستی ریٹ کے قیام سے متعلق اجلاس سے خطاب۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، مشیر قومی سلامتی لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک، وفاقی وزراء اور دیگر نے شرکت کی۔ عمر ایوب، شبلی فراز، حامد رضا، سرتاج گل، حامد رضا اور راشد شفیق کو 10 سال قید، جنید افضل شاہی کو 3 سال قید، فواد چودھری، زین قریشی اور خیال کاسرو کو بری کر دیا گیا۔ فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کے 3 مقدمات کا فیصلہ سنا دیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت فیصل آباد نے سانحہ 9 مئی کے 3 مقدمات کا فیصلہ سنا دیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی 2023 کو تھانہ سول کے علاقے میں حساس ادارے کے آفس پر حملہ کرنے کے مقدمہ نمبر 832 کے 185 ملزمان میں سے 108 کو سزا سنائی گئی، جبکہ 77 ملزمان کو بری کر دیا گیا۔ اسی طرح تھانہ سول لائن کے مقدمہ نمبر 835 کے 28 ملزمان کو سزا، جبکہ 4 کو بری کر دیا گیا۔ عدالت نے تھانہ غلام محمد آباد پر حملے کے مقدمہ نمبر 1277 کے 67 ملزمان میں سے 60 ملزمان کو 10 سال قید کی سزا سنائی ہے، جبکہ 7 کو بری کر دیا گیا۔ تحریک انصاف کے مرکزی قائدین اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، شبلی فراز، سرتاج گل، کمل شوذب، MNA صاحبزادہ حامد رضا کو 10 سال قید، جبکہ MPA جنید افضل شاہی کو 3 سال کی سزا سنائی گئی۔ مجموعی طور پر 196 ملزمان کو سزا سنائی گئی ہے۔ یہ 27 امینڈمنٹ پہ کام کر رہے ہیں، آئینی کوڈ بنائیں گے، یہ جو ایسی چیزیں ہیں جس سے پاکستان تحریک انصاف کو زد لگ سکتی ہے وہ سب کریں گے، لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف کو ختم نہیں کر سکتے۔ فواد چودھری، MPA خیال احمد کاسرو، MPA حسن نیازی، فیض اللہ کبوکا، MPA اسد محمود سمیت 88 افراد کو بری کر دیا گیا۔ اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ آج فواد چودھری صاحب کو 2 مقدموں میں بری کر دیا گیا ہے اور کسی قسم کی کانسپریسی میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں تھا 9 مئی کے اس کے اندر۔ سزا پانے والوں میں سے کوئی بھی اس وقت گرفتار نہیں۔ ان میں سے بیشتر ملزمان ضمانتوں کے بعد کچھ عرصہ عدالت میں حاضر ہوتے رہے، مگر فیصلے سے قبل یہ تمام ملزمان غیر حاضر ہو گئے، جس بنا پر عدالت کے احکامات پر کئی افراد کو اشتہاری قرار دے کر ان کے شناختی کارڈز بھی بلاک کر دیے گئے ہیں۔ دانا حبیب، ایکسپریس نیوز، فیصل آباد۔ دوسری جانب تحریک انصاف کا ATC فیصل آباد کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں 3 دن میں 3 سزائیں ہوئیں، 45 سال کی سزا سنائی گئی، تمام فیصلوں کو اعلیٰ عدالتوں میں چیلنج کریں گے۔ ہمارے لیڈر کو ناحق جیل میں رکھا گیا، اس سب چیزوں کے باوجود ہم بڑھتے رہے، سسٹم کا حصہ ہوتے رہے، ایمان میں رہے، بائیکاٹ نہیں کیا، دھرنا نہیں دیا۔ پاکستان تحریک انصاف سسٹم کے چلنے پہ یقین رکھتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف انتہا پسندی پہ بلیو نہیں کرتی۔ 2023 سے پٹیشنیں پینڈنگ کے ہمارے فیصلے نہیں ہوئے۔ یہ جو فیصلے آ رہے ہیں اس سے ملک اور قوم کا سخت ترین نقصان ہو رہا ہے، اس سے ڈیموکریسی ڈیریل ہو جائے گی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا ATC فیصل آباد کے فیصلے کا خیر مقدم، کہا 9 مئی مقدمات کا فیئر ٹرائل چلا، فیصلہ ملک میں قانون اور انصاف کی جیت ہے۔ 9 مئی واقعات کا ماسٹر مائنڈ جیل میں ہے۔ فیصل آباد کا آج فیصلہ آیا ہے تو فیصل آباد میں انہوں نے دفاعی جو ہمارے ادارے ہیں ان کے دفاتر کا رخ کیا، وہاں پہ انہوں نے توڑ پھوڑ کی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قانون کی جیت ہے، یہ اس ملک میں انصاف کے نظام کی جیت ہے۔ یہ کیسے لوگ ہیں جو وہ کام کرنے پہ تلے ہوئے تھے کہ جو دشمن بھی نہیں کر سکا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آئین اور قانون کے مطابق جو سزائیں ان کو ہوئی ہیں ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اس سے آئندہ راستہ بند ہوگا کہ کوئی جرت نہیں کرے گا۔ ملک احمد خان بھچر پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے فارغ، نوٹیفیکیشن جاری۔ ATC لاہور سے 10 سال کی سزا پر الیکشن کمیشن نے نااہل کر دیا تھا۔ ملک احمد خان بھچر پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے فارغ، نوٹیفیکیشن جاری۔ ATC لاہور سے 10 سال کی سزا پر الیکشن کمیشن نے نااہل کر دیا تھا۔ اپڈیٹ کریں، ملک احمد خان بھچر پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عہدے سے فارغ، نوٹیفیکیشن جاری۔ ATC لاہور سے 10 سال کی سزا پر الیکشن کمیشن نے نااہل کر دیا تھا۔ آپ کو بتاتے چلے ملک احمد خان بھچر پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے فارغ۔ دوسری جانب پاکستان اور امریکہ کے درمیان اہم تجارتی معاہدہ طے پا گیا ہے۔ معاہدے سے باہمی ٹیرف اور امریکہ میں پاکستانی
मसनूआत पर लगने वाले टैरिफ में कमी आएगी। मुआहिदा वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और अमरीकी सेक्रेटरी कॉमर्स की मुलाकात में तय पाया है। पाकिस्तान की मईशत के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तारीखी अहम तिजारती मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे से बाहमी टैरिफ और अमेरिका में पाकिस्तानी मसनूआत पर लगने वाले टैरिफ में कमी आएगी। मुआहिदा वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और अमरीकी सेक्रेटरी कॉमर्स की मुलाकात में तय पाया। वजारत खजाना के मुताबिक मुआहिदे से तवानाई, मादनियात, क्रिप्टो करेंसी और दीगर में इक्तसादी ताउन के नए दौर का आगाज होगा। दोनों मुल्कों को एक दूसरे की मंडियों तक बेहतर रसाई मुयस्सर आएगी। वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, वसीतर दो तरफा माशी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उभर कर सामने आई है। सुबह जो मुलाकात हुई उसमें हम सब मौजूद थे। उसमें एम्बेसडर ग्रेयर थे, सेक्रेटरी लुटनिक थे, एंड वी हैड अगेन ए वेरी कंस्ट्रक्टिव final round of discussions which will then led to finalizing the trade deal. पाकिस्तान और अमेरिका में तिजारती डील की खबर अमरीकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर सुनाई। कहा, पाकिस्तान और अमेरिका तेल के वसी ज़खायर की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। हो सकता है एक दिन पाकिस्तान भारत को भी तेल फरोख्त करना शुरू कर दे। पाक अमेरिका तिजारती तारीखी मुआहिदा तय पाने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। कहा, सदर ट्रंप ने तारीखी तिजारती मुआहिदे की तकमील में कायदाना किरदार अदा किया। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने भी अमेरिका से तिजारती मुआहिदे का खैर मकदम किया है। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तारीखी अहम तिजारती मुआहिदा तय पा गया। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं फरवा आमिर, डायरेक्टर ऑफ साउथ एशिया इनिशिएटिव, एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट, न्यूयॉर्क से। जी फरवा आमिर साहिबा, पाकिस्तान और अमेरिका की तारीखी तिजारती डील पर आप क्या कहेंगी और इससे पाकिस्तानी मईशत को कितना सहारा मिलेगा? यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो री इंगेज कर रहा है पाकिस्तान के साथ, और ये जो ट्रेड डील की अनाउंसमेंट हुई है और एक्सप्लोरेशन की अनाउंसमेंट हुई है ऑयल रिजर्व्स को लेके, इससे पाकिस्तान के लिए जाहिर है बूस्ट है कि इन्वेस्टमेंट आएगी। और अगर पाकिस्तान, अभी तक कोई टैरिफ रेट की अनाउंसमेंट नहीं आई है, लेकिन अगर पाकिस्तान एक ऐसे रेट को हासिल करने में कामयाब हो जाता है जो कि उसकी अदर कंपेटिटिव एशियन सॉर्ट ऑफ कंट्रीज काउंटर पार्ट्स हैं, तो उसके मुकाबले में अगर उसका रेट कम हुआ तो उसको एक कंपैरेटिव एडवांटेज भी मिल जाएगा अपने एक्सपोर्ट्स को लेके। भारत जो है उसने सबसे पहले ट्रेड टॉक्स इनिशिएट कर दी थी और 5 राउंड ऑफ नेगोशिएशंस के बावजूद जो है कुछ सेक्टोरल कंसर्न्स इंडिया के जो हैं उन्होंने नेगोशिएशंस को जो है एक तरीके से जरा स्टॉल कर दिया और हमने वो 25% वाली अनाउंसमेंट सुनी। मगर अभी भी मौका है दोनों साइड्स के पास मजीद इस बात पे ट्रेड को लेके नेगोशिएशंस करने का और अपने जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का जो उनका मिशन है उसके टुवर्ड्स काम करने का। तो ये एक टेम्पररी मेजर है अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है कल 25% टैरिफ का, लेकिन भारत का और यूएस का यही गोल होगा कि वो आने वाले महीनों में बाय फॉल उन्होंने ये एक अपने लिए टाइमलाइन रखी है कि वो अपने एक कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ जो है प्रोग्रेस दिखा सकें। फरवा आमिर साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की अमरीकी सदर के हालिया बयान की तारीफ। कहा, ट्रंप ने भारत के 5 जंगी तैयारे गिरने का जिक्र किया मगर मोदी खामोश हैं। आप सोचिए ना, आप एक बड़ा सवाल समझिए जो मेन सवाल है। ट्रंप ने 30-32 बार बोला है कि मैंने सीज फायर किया, राइट। ट्रंप ने यह भी बोला है कि 5 जहाज हिंदुस्तान के गिरे। ट्रंप अब बोल रहा है कि मैं 25% टैरिफ लगाऊंगा। आपने अपने आप से ये सवाल पूछा कि नरेंद्र मोदी जी जवाब क्यों नहीं दे पाए? पूछा है क्यों? एक्चुअल रीजन क्या है? क्या लगता है आपको? कंट्रोल किसके हाथ में? बात समझिए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, चीनी बहरान पर हुकूमत का सख्त एक्शन। मुल्क में मौजूद चीनी का तमाम जखीरा हुकूमत ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। 18 शुगर मिल्स के मालिकान के नाम ECL में शामिल। हुकूमत का चीनी बहरान के खिलाफ सख्त एक्शन, क्रैकडाउन तेज, ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी। मुल्क भर में मौजूद चीनी का तमाम जखीरा हुकूमत ने अपने कंट्रोल में ले लिया।
19 लाख मैट्रिक टन चीनी हुकूमत के कंट्रोल में आ गई। 18 शुगर मिल्स के मालिकान के नाम ECL में शामिल कर लिए गए हैं। वजारत फूड सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक फैसला चीनी की मसनूई किल्लत और कीमतें मजीद बढ़ने के खदशे के पेश नजर किया गया है। तमाम मिल्स में चीनी स्टॉक पर FBR के एजेंट तैनात कर दिए गए हैं, जबकि शुगर मिल्स के चीनी स्टॉक पर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगा दिया गया है। वफाकी वजीर राना तनवीर कहते हैं मुल्क में चीनी का कोई बहरान नहीं है। गवर्नमेंट ऑन ट्रैक है, गवर्नमेंट मोनिटर कर रही है, सुबह शाम मोनिटर कर रही है। मैं रात सोने तक करता हूँ, मैं आपको ईमान से बता रहा हूँ। सुबह उठते हुए सबसे पहले ये काम करता हूँ, रिपोर्टें आता हूँ, निकलता हूँ। अभी भी घंटे घंटे बाद पूछता हूँ जो मेरा कंट्रोल रूम बना हुआ है। लेकिन वी आर डूइंग आवर बेस्ट जी। हमने कुछ लोगों को ECL पे डाला है, बिल्कुल डाला है, और कुछ को बहुत सारा और भी आर्म ट्विस्टिंग की है। जो बड़े बड़े होल्डर हैं या बहुत बड़े इसमें मैनिपुलेटर हैं, ये गवर्नमेंट ने, और हमने बेशुमार करियाने पे भी जिस तरह आप कहते हैं कुछ करते हैं गड़बड़। कराची में चीनी की कीमत 200 रुपए तक पहुंच गई। थोक मार्केट में चीनी की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। इंतजामिया के जुर्मानों पर थोक व्यापारियों ने एक्स मिल कीमत पर चीनी खरीदारी रोक दी। पंजाब में जिला इंतजामिया ने जखीरा अंदोजों और मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैक डाउन करते हुए 24 घंटों के दौरान 1344 से ज्यादा दुकानदारों पर जुर्माना आयद किया है। यूटिलिटी स्टोर्स का ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बंद हो गया है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने तमाम जोनल मैनेजर्स को मुरासला अरसाल कर दिया है। दूसरी जानिब ओगरा ने LPG 17 रुपये 74 पैसे किलो सस्ती कर दी है, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अगस्त के लिए LPG की कीमत 215 रुपये 36 पैसे किलो मुकर्रर। 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 209 रुपये 24 पैसे सस्ता हो गया है। अगस्त के लिए घरेलू सिलेंडर की कीमत 2541 रुपये 36 पैसे मुकर्रर कर दी गई। और अब बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान में शदीद सैलाबी सूरत-ए-हाल। 37 मकामात को आफत ज़दा करार दे दिया। इमरजेंसी नाफिज। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक दियामर के 12, गिलगित 9, गिजर 5, करदू शगर 4, घांचे 2, नगर और खरमंग में एक एक मकाम आफत ज़दा करार दे दिया गया। तर्जुमान GB हुकूमत के मुताबिक 10 अफराद जामहक हुए, जिनमें ज्यादातर सयाह शामिल हैं। पाकिस्तान का खला से ज़मीन पर मुशाहिदे का हामिल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च कर दिया गया। सैटेलाइट के लॉन्चिंग पैड से खलाहों का सफ़र बराह रास्त दिखाया गया। सैटेलाइट कामयाबी से खला में भेजने पर चीन के सफारतखाने ने पाकिस्तान को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दी। तफसील बता रहे हैं आफ्ताब खान। पाकिस्तान ने खलाई तहकीक में एक और संगमील अबूर कर लिया। जदीद रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट चीन की शीजांग सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर से कामयाबी से लॉन्च। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7 से 8 बजे के दरमियान सैटेलाइट लॉन्च किया गया। सैटेलाइट लॉन्च को बराह रास्त सिपारको कराची सेंटर में भी देखा गया। ये सैटेलाइट जो राफ़े खतरात की निशानदेही करके CPEC जैसे कौमी तरक्याती पहलुओं को भी सपोर्ट करेगा। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बेसिकली जो है सैटेलाइट से पिक्चर्स ले रहे हैं, अर्थ की जो है ज़मीन की तस्वीरें लेते हैं, जिससे आपको तमाम अपनी इंफॉर्मेशन का पता चल जाता है कि आपके पास क्रॉप्स कितनी हैं, आपकी सिटी कैसे एक्सपेंड हो रही हैं, आपके पास ग्लेशियर्स की क्या मेल्टिंग है, या फिर आपके पास वाटर रिसोर्सेज की क्या इन्फॉर्मेशन है। लॉन्चिंग के वक्त चीन के लॉन्चिंग सेंटर में पाकिस्तानी खलाई इदारे सिपारकों के साइंसदान भी मौजूद थे। जबकि लॉन्चिंग की तकरीब में प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद यासिर का चीन से वीडियो मैसेज नशर किया गया। सिपारकों के मुताबिक सैटेलाइट की मदद से पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की और शहरी फैलाव की निगरानी हो सकेगी। सैटेलाइट सैलाब, जमीनी खिसकाव और जल्जलों की बरवक्त इंतबाह फराहम करने की सलाहियत रखता है। आफ्ताब खान, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। रहनुमा नून लीग साद रफीक ने 129 के ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने से माजरत कर ली है। कहा ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेना मुकामी उम्मीदवारों का बुनियादी हक है। बास नागुज़ीर सियासी वजूहात की बिना पर ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेना चाहता। रहनुमा नून लीग साद रफीक ने NA 129 के ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने से माजरत कर ली। कहा ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेना मुकामी उम्मीदवारों का बुनियादी हक है। बास नागुज़ीर सियासी वजूहात की बिना पर ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेना चाहता।
मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी ने मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इक़्तिसादी ताउन, दिफाई शराकत दारी और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद पर तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम दिया। मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी, सियासी, माशी और दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया गया। मरियम नवाज ने कहा, सऊदी अरब से ताल्लुक पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का मरकजी सतून है जो वक्त के साथ मज़ीद मजबूत हो रहा है। पाकिस्तान GCC फ्री ट्रेड मुआहिदे की जल्द तकमील के लिए सऊदी ताउन का ख़्वाह है। KP की सेनेट नशिस्त पर तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। मिशाल यूसुफजई 86 वोट लेकर कामयाब हो गईं। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक अपोजिशन की उम्मीदवार मेहताब जफर ने 53 वोट हासिल किए। नशिस्त सानिया निश्तर के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। अपडेट करें, खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट नशिस्त पर तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। सेनेटर फैसल बाबडा कहते हैं, PTI अरकान की नाअहली का सिलसिला शुरू हो गया। MKM पाकिस्तान की तरह PTI पाकिस्तान की नई शक्ल बनेगी। ये जो PTI की बारी पे खज्जर पीठ पे बारा है, इदारों पे खज्जर बारा है, PTI ने जो जमहूरियत पे खज्जर बारा है, जो पार्टी पे खज्जर बारा है, ये सब क्यों खज्जर बारा गया? अपने गुनाह दूसरे पे डालने की सारी कोशिश की है। अदालतों ने सही फैसला किया और ATC की अदालतों ने फैसला किया है और इसमें नाअहलियां भी अब मजीद होगी। MKM पाकिस्तान की तरफ, PTI पाकिस्तान की तरफ गामजद है। आप मुझे बताए ना, 8 सीटें सेनेट की चाहिए मिलनी थी PTI को, 5 क्यों मिली? इसके पीछे क्या वजूहात है? ये सारी चीजें मैं वतन वापस आने पर बिल्कुल आप लोगों को मजीद डिटेल से बताऊंगा। CEO के इलेक्ट्रिक मोनसलवी को ओहदे से हटाने का हुक्म जारी कर दिया गया। सूबाई मोहतसब आला जस्टिस रिटायर्ड शाहनवाज तारिक ने CEO के इलेक्ट्रिक को सजा सुनाई। CEO के इलेक्ट्रिक को 25 लाख रुपए जुर्माना किया गया। सूबाई मोहतसब आला ने कहा, CEO के इलेक्ट्रिक मोनसलवी पर इल्जामात साबित होता है, CEO के इलेक्ट्रिक एक माह में जुर्माने की रकम अदा करें। CEO के इलेक्ट्रिक के खिलाफ महरीन जहरा ने शिकायत दर्ज कराई थी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत वज़ीर आला हाउस कराची में यौम आज़ादी के हवाले से इजलास हुआ, जिसमें सूबे की सरकारी और निजी जामियात के वाइस चांसलर्स ने शिरकत की है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने ऐलान किया कि यौम आज़ादी को मार्का हक के उन्वान से 1 अगस्त से 14 अगस्त तक भरपूर अंदाज में मनाया जाएगा। वज़ीर आला ने तमाम जामियात को हिदायत दी कि वो अपने कैंपस की इमारत को कौमी वक़ार के मुताबिक सजाएं और अदबी, सकाफती और खेलों पर मबनी सरगर्मियों का शेड्यूल तरतीब दें। वज़ीर आला ने कहा, बेहतरीन सजावट करने वालों को खुसूसी इनाम दिया जाएगा। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने मुख्तलिफ सरकारी और निजी इदारों में होने वाली तकरीबात और सरगर्मियों की तफसीलात से आगाह किया। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा थोड़ी सी बेवफाई एक ऐसी कहानी है जो रिश्तों के नाजुक ताल्लुकात और माजी की यादों से उभरती है। देखिए ड्रामा सीरियल थोड़ी सी बेवफाई हर जुम्मा, हफ्ता और इतवार की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये सारी हरकतें, बस कर देंगे अब। सारी जिम्मेदारियां अगर मुझ पे थोपना चाहता है तो मैं क्या करूंगा? सबके दिलों में समाई एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की पेशकश थोड़ी सी बेवफाई। रानिया की कोशिश है कि वो जासिर को मना ले और अरसल को खुद से दूर ना जाने दे। जासिम, अगर तुम नहीं माने ना तो शराज अरसल को बोर्डिंग भेज देगा। बहुत छोटा है मेरा बेटा, अभी भी रात को डर जाता है, वो वहां पे सरवाइव नहीं कर सकेगा। प्लीज प्लीज जासिम, आई बेग यू, मान जाओ। देखो प्लीज प्लीज रानिया, मेरी अना, मेरे सब्र, मेरे हौसले का इतना इम्तिहान मत लो तुम। मगर क्या सब कुछ वैसा हो पाएगा जैसा वो चाहती है? इस कहानी को रोशन कर रहे हैं पाकिस्तान के बेहतरीन अदाकार इफ़्फ़त रहीम, साजिद हसन और नौमान मसूद, जिनकी हर अदा, हर सीन में छुपी होती है एक गहरी बात। बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दो, मैं माजूर हूँ, मेरा हाथ नहीं है। थोड़ी सी बेवफाई एक जज्बाती सफर जहां हर मोड़ पर होता है दिल का इम्तिहान। देखना ना भूलिए थोड़ी सी बेवफाई हर जुम्मा, हफ्ता और इतवार की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। इस्लामी नाम मोहम्मद मुसलसल दूसरे बरस इंग्लैंड और वेल्स में मकबूल नाम बन गया।
برطانیہ کے ادارہ قومی اعداد و شمار کی 2024 کے لیے مقبول ترین ناموں کی فہرست جاری کر دی گئی، جس کے مطابق برطانیہ اور ویلز میں مقبول ترین ناموں میں نام محمد سر فہرست ہے، جبکہ نور دوسرے اور اولیور تیسرے نمبر پر رہا، جبکہ لڑکیوں کے ناموں کے لیے اولیویا اور ایمیلیا مسلسل تیسرے برس سر فہرست رہے ہیں۔ دوسری جانب شاہی ناموں کی مقبولیت میں نمایاں کمی آ گئی ہے، جارج چھٹے اور ولیم 27ویں نمبر پر ہے۔ نیوز بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبروں کے لیے آپ وزٹ کیجئے express.pk۔ تو دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز۔